In Chapter 8, Comparing Quantities. In last class, we have discussed that how we can find ratio and percentage. So for ratio, we just have to divide the quantities and they should have same unit. Means अगर आपका एक distance given है, if the distance is in meter, first distance वो meter में है, तो second distance भी किस में होना चाहिए? In meter only. Okay, and percentage के लिए भी आपको यही करना है. आपको जिसकी percent find कर रहे हो उसका जो भी आपको गिवन है, नंबर गिवन है, वो हम ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल इनटू 100. Okay, so I think we have done first question. Now we will start from question number 2. In question number 2 we have to convert the following ratios to percentage. Ratio में आपको गिवन है, we have to convert into percentage. So see second question, A part. Ratio is 3:4. Okay, so how you will solve it? First write in the ratio form, means in fraction form, 3/4 here. Then what will you do? Multiply by 100 and write this sign of percent also. Okay, means किससे multiply करना है? 100% से. So after solving this, what will get? 4 2 is 8, 25. 5 is 20 होगा, so 25. 3 into 25, what will come? 75%. So this is your answer. Okay, so this is the way you can convert ratio into percentage. Is this clear? You just have to write the ratio in fraction form, then multiply it by 100%. That's it. And the last step is you have to cancel. If the numbers are cancelled out, then you will cancel. Otherwise you can write in the mixed form. Okay, point में भी लिख सकते हो, but in your syllabus you have to write in the mixed form. So यहाँ से हमारा कितना आंसर आएगा? 3 से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. So this will be 200/3%. Right? So what will you do? In rough, you will divide 200 by 3. Then we will write in the mixed form. Is this clear? So divide करके मुझे quotient and remainder बताओ. Tell me the quotient and remainder. Tell me what will come. 6 जा 3 6 जा 18. Okay, so this will be 20. तो बहुत लंबा है, पॉइंट्स में काफी लंबा जाएगा. आपको कंप्लीट पॉइंट में नहीं करना है. आई एम आस्किंग यू क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सो व्हाट विल बी रिमाइंडर? 623. Okay, remainder is 2. So how can I write? You have to write denominator as it is. Okay, denominator upon में 3 होगा. Clear है? Okay, denominator will be 3 only. Now write quotient here and then divisor here. Sorry, remainder here. Okay, clear हुआ? ये क्या लिखते हैं हम? क्वेश्चन. रिमाइंडर तो आपका सेम, डिनोमिनेटर विल बी सेम, वो तो आपका एज इट इज लिख देना है 3. डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइजर. राइट, वो तो नीचे ही लिखना है. बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर. सो योर आंसर इज 66 2/3%. नोट करो दोनों पार्ट्स. डन. Okay. Now question number 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? So आपको given है 25 total students. It means okay. So total number of students is 25.
इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स कितने होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट विल फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। कैसे फाइंड करोगे, 75% ऑफ 25, है ना, कितने परसेंट, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, 75% ऑफ 25, राइट। सो राइट इन दिस फॉर्म, 75% मीन्स 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो परसेंट को मैं रिप्लेस कर रही हूँ बाय 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25। ओके, नाउ सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। 1875/100। नो, पॉइंट में देखो, पॉइंट में नहीं होगा आंसर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर पॉइंट में नहीं हो सकता ना, स्टूडेंट्स पॉइंट में थोड़ी होंगे, वो कोई नंबर आएगा आपके पास। सी 25 4 जा 100, अगर आप 25 से, या यू कैन ऑल्सो कट बाय 5। Okay. No, I'm telling the final answer. It will be ओ, somewhat 15. ओके, आई हैव रिटन रॉन्ग हेयर, देखो यहाँ पे हमें 72 लिखना था, because in question we have given 72% and I have written 75, so please correct it, 72, now it is 72, now tell me the answer, 72/4। 18. Very good. The students who are interested in mathematics are 18. Now we'll find number of students who are not interested in mathematics. Number of students not interested in mathematics. कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस हु आर इंटरेस्टेड, राइट, ऐसे तो फाइंड करोगे। ओके, 25 minus 18, so this will be equal to 7। clear, clear है। Yes, ma'am. Okay, now you have to find percentage, because हमें कितने गिवन, हमें जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था, राइट। तो हम ये फाइंड करेंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, नंबर्स में तो हमने फाइंड कर दिया 7, बट परसेंट की फॉर्म में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 100 माइनस 72 कितना होगा, 28। सो नाउ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स not interested in mathematics will be equal to, one method is you can subtract directly 100 minus 72, that is 28%। okay, वो भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एंड सेकेंड मेथड इज, first you will write number of students who are not interested 7, then upon total number of students into 100%, so 25 fours are 100, 7 fours are 28, so answer is 28%। अगर आपको सिर्फ नंबर पूछा होगा तो हम 7 लिखेंगे, ओके, बट अगर परसेंट भी पूछा होगा तो हम क्या लिखेंगे, 28%। इज दिस क्लियर। ओके, वैसे आपसे नंबर ही पूछा है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, कितने स्टूडेंट्स नहीं है। अब आप एनसीईआरटी में मैच करना, एंड में आंसर आपको 7 गिवन है और 28%।
Done. Okay, next question. Fourth. A football team won 10 matches out of total number of matches they played. मीन्स वो जितने भी मैचेस खेलते हैं, हमें नहीं पता कितने खेलते हैं, बट उसमें से कितने उन्होंने वन किए? 10. If their win percentage was 40, means उनकी winning percent given है was 40, means 40% is their winning percentage. Now then how many matches did they play in all? उन्होंने सारे कितने मैचेस खेले होंगे? ओके, 10 मैचेस में वो जीते हैं और उसका विनिंग परसेंटेज हमें गिवन है 40. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस फाइंड करने के बाद ये फाइंड करना है कि उन्होंने कितने मैचेस प्ले किए. ओके, सो लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी एक्स. हमें नहीं पता कितने मैचेस प्ले किए, कितने टोटल हैं कितने. सो लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी एक्स. So in question number 4, we have given that if football team won 10 matches out of the total number of matches they played. So if the win percentage 40, we have to find how many number of matches they played. Means हमें क्या find करना है कि कितने matches play किए. So let the total number of matches be x. Now according to question हमें question में क्या given है? That 40% of टोटल मैचेस जितने उन्होंने जीते हैं, टोटल मैचेस. ओके, 40% ऑफ 12 मैचेस किसके इक्वल गिवन है? 10. क्योंकि ये क्या है, 40% क्या गिवन है? ये भी विनिंग परसेंट है और विनिंग मैचेस कितने हैं? 10 है. क्लियर हुआ? सो 40% ऑफ टोटल मैचेस कितने होंगे, किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली 10 के इक्वल ही होगा, बिकॉज उन्होंने 10 मैचेस ही जीते हैं और उनका विनिंग परसेंट 40% है. सो 40 अपॉन 100. परसेंट को मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे? अपॉन 100. ऑफ को क्या लिखेंगे? इनटू. एंड टोटल मैचेस कितने हैं? x. सो दिस इज इक्वल टू 10. नाउ विल सॉल्व इट. 4 10 x. 10 डिनोमिनेटर में है, सो दिस विल बी 10 इंटू 10 एंड 4 इज इन न्यूमरेटर, देन इट विल गो ऑन डिनोमिनेटर. नाउ cancel it and tell me the value of x. Yes, very good. So total number of matches they play, therefore total number of matches they play are 25. They play will be equal to 25. So 25 is the answer. They played is equal to 25. Done. Just a moment. Yes, ma'am. Question number 5th. So in 5th question, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, means उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं? 75% ऑफ हर मनी. मनी हमें नहीं पता कितनी है, बट 600 जितने भी स्पेंड करने के बाद अभी उसके पास कितने बचे हैं? रुपीज 600. नाउ हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? तो उसके पास कितने पैसे थे, हमें ये फाइंड करना. ओके, तो हम जो भी आपको फाइंड करना है उसको हम एक्सलेट करते हैं. सो लेट money in the beginning be x. Let money in the beginning be x. Then according to question, हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप उसके पास मनी इतनी थी, देखो मैं स्टेटमेंट ही लिख रही हूँ, आपको क्या गिवन है? रुपीज 600 विल बी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी. इट मीन्स टोटल में से जितनी मनी थी, ओके, एक्स मनी है, उसमें से हमें कितना माइनस करना है? 75% ऑफ मनी, बिकॉज 75% ऑफ मनी उसने क्या किया? स्पेंड. ये उसके पास मनी है, इस मनी में से उसका कितना परसेंट स्पेंड किया है? 75%. उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा? Ma'am, the total money she had was 1050 rupees. 1000 And 50. no,
see, we will do x minus 75% of मनी मीन्स मनी कितनी है, मनी को मैं x से रिप्लेस कर सकती हूँ राइट, बिकॉज मनी हमने कितनी दी है x, मीन्स x मनी थी उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना उसने यूज किया स्पेंड किया, दैट इज 75% ऑफ दैट मनी एंड विच इज इक्वल टू 600. नाउ सॉल्व इट, x माइनस राइट 75 upon 100 into x, okay, into x, of means into and x. Now cancel it. You can directly cancel by 25 also, or you can cancel it by 5 also. Okay, so this will be 3 upon 4. कितना आ गया, x minus 3 by 4x is equal to 600. Now solve it. Okay, इसको solve करके बताओ. First take LCM and then solve. LCM is 4. So it will be 4x minus 3x is equal to 600. So this will be x upon 4 600. अब 4 उधर जाएगा. So x will be 600 into 4, that is 1200. Clear? So in the end you will write that hence money in the beginning is rupees 1200. So this is your answer. Sorry, 2500, 2400. Okay, 6 4s are 24 होता है right? So this will be 2400. Answer is rupees 2400. Means उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी थी, 2400. उसने उसका 75% यूज किया, उसके बाद कितनी मनी बची, ओनली 600. Is this clear? Note it. नोट करो. Done? Tell me. So next question is question number 6. In question number 6, we have given if 60% people in a city like cricket, 30% like football, and remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें आपको क्या गिवन है, दैट क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 60%, फुटबॉल 30%. अब रिमेनिंग कितना होगा, 60 प्लस 30 हो गया 90, कितने बचे, 10%. इट मीन जो बाकी के जितने भी गेम्स हैं वो कितने लोगों को पसंद होंगे, 10%. क्लियर है? तो आपका यहाँ तक फर्स्ट पार्ट तो यहीं तक हमारा डन हो गया कि वो तो 10% होगा. उसके बाद आपको फाइंड करना है कि जो पीपल आपको गिवन है वो 50 लाख है. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 50 लाख है. अब आप बताओ कि एग्जैक्टली नंबर्स में कितने होंगे पीपल. जो 60% पीपल है वो कितने नंबर्स के इक्वल है, एंड 30% किसके इक्वल है, एंड 10% कितने नंबर्स के इक्वल होगा. क्लियर? सो यू विल राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ people
people like cricket is equal to 60%. Number of people like football will be 30%. Then number of people like other games. अदर गेम्स जो लाइक करेंगे वो ऑब्वियसली 100 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज टोटल पर्सन कितना होता है 100, 100 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ऐड करके। ओके, डायरेक्टली आपको वैसे भी पता है जो बच गए वही होंगे, सो आंसर विल बी 100% माइनस 90%, सो दिस इज 10%। सो फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर मिल गया है कि जो अदर गेम्स के पीपल हैं वो कितने परसेंट है, 10%। Here now we have to find number of exact number of people. So we have given now total number of people is equal to 50 lakh. So 5 zeros will be there like this. Okay, ये आपको given है. So now exact number of people. Exact number of people who like cricket. First we will find people, number of people for cricket. Okay, so exact number of people like cricket कितना होगा, 60% of this total है ना, 60% of this total people. Now we solve it. 6 5 जा 30, 30 अभी कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, 5 more zeros. So this is your answer. You can write 30 lakh also. Okay, first part clear. Now in a similar way we will find exact number of people like football. Exact number of people who like football. This you will solve and tell me कैसे करना होगा। 30% of 50 lakh कितना होगा बताओ। Tell me, solve it like this, 30 upon 100 into 50 lakh. What is the answer? 15 lakh, right? 15 lakh ही होगा। Okay, now last is exact number of people like other games. That is 10% of 50 lakh, 10 upon 100 into 50 lakh. 2 zeros will cancel out, so answer is 5 lakh. Okay, so this is for cricket, this is for football, and this is for other games. Note it. नोट करो, क्लियर है। तो पहले हमें परसेंट की फॉर्म में निकालना था, उसके बाद हमें नंबर। तो आप ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो हम नंबर निकाल सकते हैं, नंबर भी गिवन होगा तो हम परसेंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। डन। नेक्स्ट टॉपिक, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज,
What are you saying? You are not audible. I haven't completed that. Okay, I will show you. Wait. So our next topic is finding the increase or decrease percent. Finding increase और डिक्रीज परसेंट. मीन्स किसी भी चीज में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है. जैसे आपको गिवन होता है कि इसका प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस बाय 10% और प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजेस बाय 20%. तो वो कितना प्राइस होगा आफ्टर डिक्रीजिंग. या आपको अमाउंट गिवन है कि पहले 20 रुपीज थी, अभी 10 है, तो कितना इंक्रीज हुआ इन परसेंट या कितना डिक्रीज हुआ. जो भी क्वेश्चन में होगा उसके बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं. तो मीनिंग तो क्लियर है आपको. अब हम क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ, उससे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. सो क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज example 2, that is example 2 of your NCRT. So price of scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20%. It has increased by 20% this year. So what is price? What is price now? क्लियर है ना क्वेश्चन. ओके, सो अभी कितना प्राइस होगा. ओके, इंक्रीज हो गया. इंक्रीज होने के बाद Yes, ma'am. so how will you find this? This is very easy. First you will find 20% of this total amount. ओके, कितना होगा इसका 20% कितना होगा वो हम फाइंड कर लेंगे और वो आप इसी प्राइस में ऐड कर देना. दैट विल बी द प्राइस नाउ. क्लियर. सो in solution you will write that price of scooter last year. Price of scooter last year is rupees 34,000, 34,000. So 20% of 34,000 कितना होगा. 20/100 into 34,000. ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 6,800 मीन्स 6,000 रुपीज इंक्रीज हो गया है. सो जो आपका न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा. देयरफॉर न्यू प्राइस विल बी ओल्ड प्राइस प्लस जो प्राइस इन इंक्रीज हुआ है. ओके, इंक्रीज कितना हुआ है उसमें वो ऐड कर दोगे आप. सो ओल्ड प्राइस कितना था हमारा 34,000 और अभी कितना इंक्रीज होके हुआ है 6,800. ओके, ऐड करो कितना आएगा 4,0800 रुपीज. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर है. अगर आपको सेम डिक्रीज गिवन होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि डिक्रीज होने के बाद तो प्राइस लेस होगा और वो आप कैसे फाइंड करोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग. सेम क्वेश्चन में अगर आपका इंक्रीज की प्लेस पे डिक्रीज होता तो हम प्लस की प्लेस पे क्या लिखते हैं माइनस, एंड इंक्रीज की प्लेस पे डिक्रीज. क्लियर है. नोट करो. सो इंक्रीज के लिए हमें यहाँ पे आप नोट करना. इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे प्लस, एंड फॉर डिक्रीज वी विल यूज सब्ट्रैक्ट. क्लियर है. जो हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ये किया है अभी कि हाउ यू कैन फाइंड परसेंटेज और रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज.
Okay, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज पसंद करेंगे, फिर हम एसपी सीपी मीन सेलिंग प्राइस पोस्ट प्राइस पे टॉपिक है हमारा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट। Okay, ma'am. Done? Okay. So let us discuss one more topic, finding discounts. Ma'am, can we end the class? Okay. So we will continue this from next class. Okay. So revise whatever we have done. Okay, Okay. ma'am.